सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में। मालूम क्या किसी को दर्द निगाह हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आज हम सब यहाँ 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाने के लिए जमा हुए हैं। इस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को लागू हुआ था। यह दिन हमें जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम सिखाता है।
एज स्टूडेंट्स हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छे सिटीजन्स बने और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें और अपने देश के फ्यूचर को ब्राइट करें। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इंग्लिश में स्पीच देने के लिए एक स्टूडेंट्स को आपके रूबरू करूं। Now I would like to call up to Mr. Tausif for English speech. Please welcome him with big hands. We have to learn something good from their words. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Director, Principal, Vice Principal, teachers and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friends, citizens and defenders of democracy, let me speak clearly and without fear. The Constitution of India is under attack not by foreign forces but from within. What we are witnessing today is not governance, it is a systematic attempt to hollow out the very document that gives legitimacy to power. The Constitution was written to limit authority, not worship it at today. Power is being centralized, institutions are being intimidated, and dissent is being crushed. When government fear question, they do not silence critics, they silence democracy itself. Freedom of speech is no longer treated as a constitutional right but as a crime. Journalists are jailed, students are hunted, activists are branded anti-national not for breaking the law but for exposing injustice. Let us be honest, a nation where fear replaces debate is not a democracy. It is a warning sign. Equality before laws has been reduced to a slogan. Laws are enforced selectively. Some are protected despite is not a democracy merely for their identity, beliefs or opinions. This is rule, the law, this is rule not power. And power without constitutional limits is tyranny. Secularism, a core pillar of our treated as a openly challenge. Criticizing and belonging or on question. The Constitution never promised a nation of one religion, one culture or an ideology. It promised dignity, diversity and justice. Any attempt to rewrite that promise is an assault on India itself. Federalism is being strangled. States are treated as subordinates, not partners. Institutions are pressured to mean to act independently. This is not a strength. This is insecurity disguised as authority. Let me say this loud and clear. Criticizing the government is not anti-national. Weakening the Constitution is anti-national. Does not mean blind obedience. Patriotism does not mean blind holding power accountable. Dr. B.R. Ambedkar warned us that the Constitution can be destroyed not by force but by those entrusted to uphold it. That warning is no longer theoretical. It is happening now. If we remain silent today, we will not lose
Just right. We will lose our future. The constitution will survive only if the citizens defend and relentlessly, loudly and fearlessly. This is a not request. This is a not suggestion. This is a constitutional duty. Defend the constitution. Defend democracy. Defend India. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जब एक विद्यार्थी मंच पर आता है तो केवल वह भाषण नहीं देता, बल्कि वह हिंदुस्तान की आवाज बनकर आता है, बल्कि वह भारत के भविष्य की आवाज बनकर आता है। तो मैं आप हजरात से अनुरोध करूंगा कि इन्हीं आवाज को आप अपने दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं, जिनके लिए मैं मोहम्मद इश्तियाक रजा जमाते एदादिया से अपील और गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपना विचार हमारे बीच प्रस्तुत करें। मैं इन मिसरों के साथ उन्हें बुलाऊंगा कि दिल से उतरेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से उतरेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, हमारी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, हमारी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज के इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मान्य शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी को हम भारतीय हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन साल 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन उसके बाद देश को सही तरीके से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान बनाया गया और उसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। भारतीय संविधान देश के हर धर्म के प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए आइए हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम संविधान का पालन और आदर सम्मान करते हुए हम अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक निभाते हुए अपने देश भारत को विकसित देश बनाएंगे। धन्यवाद। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब 26 जनवरी के मुबारक दिन में जामियातुल मुस्तफ़ा के इस खूबसूरत सहन में जमा हुए हैं। ये तारीख हमारे मुल्क भारत की तारीख में एक निहायत अहम और रोशन बाब की हैसियत रखती है। आज ही की तारीख सन 1950 ईस्वी में हमारा दस्तूर हिंद नाफिज हुआ और हिंदुस्तान एक मुकम्मल जमहूरी मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये इक़दाम पूरे मुल्क के लिए एक अजीम नेमत साबित हुआ। रफ़ीक़ान गिरामी, जमहूरियत का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि अदल, मुसावात और आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारना है। हमारा आईन हमें मजहबी आज़ादी देता है, हमें बोलने और अपने हुकूक के मुतालबे का हक देता है, हमें अपने दीन पर चलने और अपनी तहजीब को जिंदा रखने का हक देता है। ये सब नेमतें हमें आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे लाखों कीमती जाने, अजीम बाशिंदों की कुर्बानियां, जिद्दोजहद और सब्र की दास्तानें मौजूद हैं। आज अगर हम आज़ाद फजा में सांस ले रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि बेशुमार मुजाहिदीन ने कुर्बानियां पेश की हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल
और बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी ने अपने आराम बल्कि अपनी जानों तक को कुर्बान कर दिया। मेरे अजीजों, इस्लाम वो मुअज़्ज़ज़ दीन है जो हमें वतन से मोहब्बत करना सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत के वक्त फरमाया था, ए मक्का, तू मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। यही तर्ज मोहब्बत हमें भी अपने वतन भारत से मोहब्बत करना सिखाता है। वतन की मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम अमन के पैगाम्बर बने रहें, कानून के पाबंद रहें, तालीम को अपना हथियार और अखलाक को अपना जेवर बनाए। रफीकान ग्रामी वकार, आप इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं। अगर आप इल्म में आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा। अगर आप तिजारत, टेक्नोलॉजी और दीगर प्लेटफॉर्म्स में मजबूत होंगे तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। अगर आप इत्तेहाद और भाईचारगी को अपनाएंगे तो हिंदुस्तान नाकाबिले शिकस्त ताकत बन जाएगा। आखिर में वतन अजीज के मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि अगर आज मुल्क के हालात से आप गमगीन हो, अगर हालात आंखों को नम कर दें, तब भी मायूस मत होना। याद रखें, यह मुल्क हमारा है, इसकी मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का लहू और पसीना शामिल है। इसकी फजा में हमारी अजानों की सदा और हमारी दुआओं की खुशबू बसी हुई है। हम इस वतन पर बोझ नहीं बल्कि इस वतन की ताकत है, इसकी जरूरत है। हमारे वजूद के बगैर इसकी तरक्याती दास्तानें अधूरी हैं। आजमाइशें आएंगी, आंधियां चलेंगी, मगर ईमान वाला कभी हारता नहीं। आइन हमारे हाथ में एक मजबूत हथियार है और अल्लाह पर यकीन हमारा सबसे बड़ा सहारा है। उठो, अपने किरदार से साबित कर दो कि मुसलमान कमजोर नहीं, वो साबिर भी है और बावकार भी। ये मुल्क हमारा था, हमारा है और इंशाअल्लाह हमारा ही रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, अब मैं अरबी में खिताब करने के लिए मोहम्मद मुदस्सिर रजा जमाते फजीलत को आप हजरात के रूबरू करूं इन मिसरों के साथ कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये हम ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये हम ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये हम ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के सीने, हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। अय्युहस्सादतुल असातिज़तुल अकारिम वत्तुल्लाबुल अफादिल वल हादिरुनल किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। नहनु अल-यौम नक़िफ़ु फ़ी यौमिन अज़ीमिन मिन अय्यामि बिलादिना, यौमिन कुतिब फ़ीहि तारीख़ुन जदीदुन लिल हिंद, इन्नहु यौमुल जमहूरिय्यह अल्लज़ी नुहयीहि फ़िस्सादिस वल इश्रीन मिन शहरि यनायर मिन कुल्लि आम। फ़ी हाज़ल यौमिल अज़ीम दखल दस्तूरुल हिंद हैज़ तनफ़ीज़ फ़अस्बह असासन लिल हुर्रिय्यह व रमज़न लिल अदाला व दामिनन लिल मुसावाति बैन जमीई अबनाइल वतन दून फ़र्क़िन बैन गनिय्यिन औ फ़क़ीर औ क़विय्यिन व दईफ़ औ इख्तिलाफ़िन फ़िद्दीन अविल लुग़ह अविल सक़ाफ़ा। इन्न यौमल जमहूरिय्यह लैसा यौम फ़रहिन फ़क़त
बल हुवा यौम मसऊलियतिन व वाइन युदक्किरुना बिअन्न अल-वतन अमानतुन फी अनाक़िना व अन्न इहतिराम अद-दुस्तूर व तत्बीक़ अल-क़ानून व हिफ़्ज़ अल-वहदत अल-वतनिय्या हिय मिन अअज़म अल-वाजिबात अला कुल्लि मवातिन सालिह इन्नना कअबनाई हाज़ा अल-वतन मुतालबून बिअन नजअल मिन अस-सिद्क़ वल अमानति वल अदल उसुसन लिहयातिना व अन नुसाहिम फी बिनाइल मुज्तमा बिल इल्म वल अख़लाक़ वल अमल फलनहफ़ज़ हाज़िहि अन्निअमत अल-अज़ीमा वलनअमल यदन बियदिन लिअजल तक़द्दुम बिलादिना व इज़्दिहारिहा वलिनुक़द्दिम अफ़दल मा इंदना ख़िदमतन लिल-हिंदिल अज़ीज़ा अख़ीरन नस्अलुल्लाह अन यहफ़ज़ बिलादना व अन युदीम अलैहा अल-अमन वस्सलाम वल-वियाम व अन यजअलहा बलदन मुत्तहिदन व मुतक़द्दिमा नक्तफ़ी बिहाज़ल क़द्र व शुक्रन लकुम अला हुस्नि इस्तिमाइकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम आप तमामी हज़रात को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज जिस अंदाज से और जिस खुद एतमादी के साथ जामियातुल मुस्तफ़ा के तलबा ने इस अजीम मौके पर अपनी बात और अपने अफकार को यहाँ पे रखा, मुझे एहसास हो रहा है कि आप न सिर्फ इल्म हासिल कर रहे हैं बल्कि अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि इल्म के साथ साथ कुछ स्किल्स भी आप सीख रहे हैं। यकीन मानिए, जिस खुद एतमादी और हौसले के साथ आपने बात रखी है, ये इस मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए एक खुशाइंद बात है। अल्लाह तबारका व तआला से दुआ है कि मौला तबारका व तआला इस वतन को और इस जामिया को हमेशा शादो